thank you, Father. We thank you for this day. Today God is telling that no matter in which situation you are in, no matter the pandemic, no matter what surrounds you, no matter if you are in a hopeless situation, God is telling that through the crushing and through the pressing, He's making new wine. So we just have to give ourselves and we need to say, Lord, make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be, Lord. Let's all sing it out. Let's all worship Him. Let's all tell Him, Lord, you make me your vessel, Lord. You use me for your kingdom, Lord. You use me for your glory, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. In the crashing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. So make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. In the crushing, in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I'll lay down my old flames to carry on new fire today. 'Cause where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I'll
sing, make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, Jesus, bring new wine out of me. Yeah. Jesus, bring new wine out of me. Let's all sing together. Make me a vessel. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, Jesus, bring new wine out of me. 'Cause where there is new wine, there is new power. There is no freedom, and the kingdom is here. I'll lay down my old plans to carry on new fire today. 'Cause where there is new wine, there is new power. There is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry on new fire today. I lay down my old flames to carry on new fire today. So sing, make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Oh, Jesus, Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine out of me. Thank you, Father. Thank you for you are bringing new wine out of us, Lord. Thank you for you will never leave us nor forsake us, Father. Lord, you use us as your vessel, Lord. There's none like you, Lord. Thank you for your light shines upon us, Father. Nothing can stand against us, Father, because you sit on the throne, Lord. All honor and all authority and all power belongs to you, Lord. We offer you this pleasing sacrifice, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name I pray, amen.
प्रियो, अभी हम सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे भाई धीरज को चंगा किया। मैं आप लोगों से अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ। ये पिछले हफ्तों में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मुझे पाइल्स की तकलीफ़ हो गई थी। ब्लड भी आ रहा था पहले और बहुत ही पेन था, फ़ीवर आ रहा था बार बार और बहुत ही कमज़ोरी आ गई थी शरीर में, जिसके कारणवश मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। बहुत वीकनेस आ गई थी, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। सच में वो अपना वचन भेज के चंगा करता है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। लेकिन इन दिनों में जो भय छाया हुआ है और वो भय के कारणवश एक अलग अलग थॉट्स आते हैं, नींद नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने दासों को रखा है और मैं पास्टर जॉय का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से, क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ पास्टर ही नहीं हमारे, लेकिन वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। और सिस्टर रेखा के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमेशा एक कलीसिया जो एक परिवार है, ये जो हमने सीखा है कि हम एक परिवार हैं और परिवार जैसे परिवार में एक दूसरे की सुधि ली जाती है, वैसे ही ये मेरे भाई, ये मेरी बहन हमेशा मेरी सुधि लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जब किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत हुई, मैं उतर नहीं पा रहा था बहुतों बार, लेकिन वो चीज़ें मुझ तक पहुँच रही थी और पास्टर जॉय और सिस्टर रेखा दोनों बार बार आ रहे थे और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारा परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे जीजा जी सब खड़े हुए और मेरी वाइफ़ और मैं तो अम्बरनाथ में अपने बच्चे के साथ थे। और जैसे मैं बीमार था तो मेरी वाइफ़ को भी बार बार दिक्कत हो रही थी, बार बार नीचे उतरने में, करने में, लाने में। तो प्रभु का धन्यवाद हो, उस समय भी प्रभु ने बहुत अच्छा संभाला और वहाँ से फिर हमें उल्लासनगर अपने परिवार में लाया। और इस यहाँ पे परिवार से मिलके, जैसे बोलते हैं परिवार एक ताकत होती है, यहाँ पे आके मुझ में और रिकवरी और फास्ट होने लगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये प्रेम ही है जो हमें विश्वास में बढ़ाता है। मैं पास्टर जॉय का धन्यवाद करता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी वो मुझसे टच में थे। और जब तक मैं पूरी रीति से अभी गवाही देने के लिए खड़ा हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। उन्होंने मुझसे कहा, धीरज आधी रात को भी जब कभी तुझे ज़रूरत हो वो मुझे कॉल करना, बिल्कुल सोचना नहीं। और यह मैं दिल से जानता हूँ कि जैसे परिवार में हम लोग खड़े होते हैं, वैसे वो हमेशा हमारे लिए खड़े थे उस खिंड में, और आज भी खड़े होते हैं। और प्रभु हमें हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ा करे, ये मेरी दुआ प्रार्थना है। और सच में प्रभु का सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया शुद्धि ले रही थी, धन्यवाद करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए, कलीसिया के लिए और अपने परिवार के लिए, जिनकी वजह से मैं जल्द से जल्द रिकवर हो पाया। सारा मान गौरव महिमा प्रभु को देता हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति वंदना करते हैं। रात भर संभाला प्रभु, अभी तक संभाला प्रभु, शाम तक प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका बच्चा लोग तुम्हारा हाथ में सौंपता है प्रभु, अच्छे से आशीष दे दे प्रभु, धन्यवाद करता है। ये मोबाइल कौन सुनता है प्रभु, सबका आशीष दे प्रभु, सुनने वाला का आशीष दे, साक्षी बोलने का खड़ा रखो प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारा तुम्हारा बच्चा लोग ऊपर तुम्हारा आशीष डाल दे दे प्रभु, धन्यवाद करता है प्रभु। कि बीमार वाला ने चंगाई दे दे प्रभु, साक्षी के खड़ा रहने का सहायता कर, मदद कर। सारा बच्चा लोग तुम्हारा हाथ में सौंपता है प्रभु, धन्यवाद करता है प्रभु, स्तुति करता है प्रभु। तुम्हारा बच्चा लोग को खाना कपड़ा सब कुछ देता है प्रभु, धन्यवाद। सुख से रखा बीतल को प्रभु, धन्यवाद करता है।
किसको भी कमी घटी नहीं प्रभु, धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति करते, वंदना करते प्रभु। बच्चे लोग तुम्हारा हाथ में सौंपते प्रभु। ये सारा प्रार्थना यीशु के नाम से बोलते, सुन ले बेटा, आमीन। Greetings to you in Jesus' name. आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। A Lord who never changes, प्रभु जो कभी नहीं बदलता, yesterday, today, and forever. He is same. कल, आज और युगान युग वो एक सा है। So we need to labor for the meat which will never perish. तो हमें उस खाने पीने के लिए हमें परिश्रम करना है जो कभी भी नाश नहीं होता। As in John 6:27 it is written, जैसे यूहन्ना 6:27 में लिखा है, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, Which Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई है। So we need not to labor for the meat which perish. तो हमें नाशवंत भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना है। He says, look at the birds in the air. वो कहता है, हवा में उड़ते हुए पक्षियों को देखो, They never store up for themselves. वो अपने लिए खाना जमा करके नहीं But रखते, Heavenly Father feeds them with full to the full. पर जो स्वर्गीय पिता है उन्हें भरपेट खाना देता है। So our birth is not to labor for the food which will perish. तो हमारा जन्म उसके लिए नहीं हुआ है कि हम नाशवंत भोजन को जमा करते रहे, But we need to labor. पर हमें परिश्रम करना है। We need to labor for the meat which endureth for unto everlasting life. हमें उस भोजन के लिए मेहनत करना है, परिश्रम करना है जो अनंत काल का भोजन है। We'll read it again in B part. हम Yes. फिर से पढ़ेंगे, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, The food which will last forever. वो भोजन जो अनंत जीवन तक ठहरता है, For the meat which endureth unto everlasting life. वो भोजन जो अनंत काल के जीवन तक ठहरता है। What is that food? वो भोजन है क्या, From where we'll get? और कहाँ से हमें वो भोजन मिलता है? Immediate answer is written down. और तुरंत वहाँ पे उत्तर लिखा है, Which Son of Man shall give unto you? जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। You will not find anywhere else. आपको कहीं और नहीं You मिलेगा, can find at Jesus. आपको केवल यीशु के पास ही मिल You सकता need to है। come to Jesus. आपको जरूरी है कि आप यीशु के पास Only आए। Jesus can give to you the food which will last to the life which is आपको everlasting. केवल यीशु ही है वो भोजन दे सकता है जो अनंत जीवन तक ठहरता है। And God the Father has sealed him for that. और पिता परमेश्वर ने उस पर अपनी शाप लगाई है। So we need to understand and come to him to take that food. तो हमें जरूरी है कि हम समझे और उस भोजन को ले, And we need to labor for it. और उसके लिए हमें जरूरी है कि हम परिश्रम करें। So laboring means we need to work out for it. परिश्रम करना मतलब हमें उसके लिए काम करना है, We need to give ourselves. अपने आप को उसके लिए दे देना Jesus है। said, take my yoke which is easy. यीशु मसीह ने कहा, मेरे जुआ को उठा जो आसान That है। means we need to take up his yoke. इसका मतलब है हमें उसकी जुए को उठाना है। In 1558 of 1 Corinthians, Paul said, your labor in Christ is not in vain. पहला कुरिन्थियों का किताब 15 अध्याय उसका 58 वचन कहता है कि आपका परिश्रम यीशु मसीह में व्यर्थ में नहीं There is जाएगा। a labor which we need to do which will not go in vain. परिश्रम वो है जो व्यर्थ में नहीं जाएगा, वो हमें परिश्रम करना है। So we need to work in the Lord. इसका मतलब है हमें प्रभु में काम करना We है। need to work for that food
हमें उस भोजन में काम करना है, that provision, उस वसीले में, that thing which will last. उस चीज के लिए जो अनंत काल तक रहेगी। That is a true meat. वही सही भोजन है। That meat means to fulfill the will of God. वो भोजन मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना। When disciples came and brought the meat to Jesus and they said, Lord, eat this food. जब शिष्य यीशु मसीह के पास भोजन लेके आए और कहा कि ये भोजन खाइए, But Jesus replied, पर यीशु मसीह ने उत्तर my दिया, meat is to fulfill the will of Father. मेरा भोजन यानी परमेश्वर की इच्छा को So, पूर्ण do you करना। know what is the will of the Father? तो आपको मालूम है कि पिता की इच्छा क्या है For you, आपके लिए? to know the will of the Father for you, you need to come to Jesus. आपको परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, उसके लिए आपको यीशु के पास आना You पड़ेगा। need to come to Him to know the will of God for you. आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानने के लिए आपको यीशु के पास आना There is पड़ेगा। no other way. और कोई भी मार्ग Jesus नहीं है। can show you the way. यीशु ही है जो आपको He मार्ग is the दिखा way, the सकता truth, है। and the life. वही मार्ग, सत्य और जीवन है। He is the one who can provide you the true meat. और वो है जो आपको सही भोजन दे सकता The है। true meat is to do the will of Father. और सही भोजन वो है जो परमेश्वर की इच्छा पूर्ण How करनी है। can we fulfill the will of the Father unless we know it? हम कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं जब तक हम जानेंगे ही नहीं। Bible says बाइबल कहता है that those who know their God, they shall do mighty exploits. वो जो परमेश्वर को जानते हैं वो अद्भुत काम करेंगे And they shall be strong. और वो सामर्थशाली रहेंगे। By knowing God, परमेश्वर को जानकर we can be strong. हम मजबूत बन सकते हैं। Knowing God is a true stuff. और परमेश्वर को जानना ही सही भोजन है। When we know Him, we receive from Him. जब हम उसे जानते हैं तो हम उससे प्राप्त भी करते We will हैं। know Him and we will understand what God is. हम उसे जानेंगे और समझेंगे कि परमेश्वर क्या है। We can't know Him completely, हम पूरी तरह से उसे जान नहीं but सकते, we can know Him. पर हम जरूर उसे जान सकते हैं। Jesus can reveal the Father. यीशु मसीह पिता को दर्शाता For है, Father has sealed Him for the task. क्योंकि पिता ने उसे खास मकसद के लिए उस पर मुहर लगाई है। This is what the hidden treasure in the Lord. यही है जो छुपा हुआ रहस्य है, छुपा हुआ खजाना है We will प्रभु be में। blessed with the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा से आश्रित हो जाएंगे। That means we are not going after three gods. इसका मतलब है हम तीन परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे It's हैं। not that we are going after the God who is undergoing a modism, one after another modes. और हम उस परमेश्वर की उपासना नहीं करते कि एक मोड से वो दूसरे मोड में जाता है, But we are serving God who is triunity. पर हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो त्रिएक है। We are serving Him, the one who is plurality in unity. हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो वो खुद में वो बहुत कुछ है। And Jesus can reveal it. और यीशु मसीह जो है वो उसे दर्शाता है। When we come to Him, जब हम उसके पास आते हैं and Jesus can reveal the three persons in one nature. और यीशु मसीह है जो उसके अंदर त्रिएक को दर्शाता वो है। तीन व्यक्तित्व को खुदा के अंदर देखने के लिए, पहचानने के लिए वही हमें मदद करेगा, because He is the way. क्योंकि वही मार्ग है, He alone is the truth. वही अकेला And जो है in Him we can सच्चाई है। find the life. और उसके अंदर ही हम जीवन को पाते हैं। He is the three who's, God is the three who's in one what? और परमेश्वर तीन कौन है, एक किस में, कैसे में? We need to come to Him. हमें उसके पास No आना one है। knows God. कोई भी परमेश्वर को जानता No नहीं one has seen Him. और किसी ने भी उसे देखा But नहीं, only begotten of the Father. पर केवल
उसका इकलौता पुत्र, only begotten of the Father. वही जो उसका खुद का है, ओ पिता का जो इकलौता इकलौता है, है। He will reveal. वो हमें हमारे सामने प्रकट He करेगा। reveals the glory of the Father. वो पिता की महिमा को प्रकट करता There है। is only one God. केवल एक ही परमेश्वर है। 3 different persons in one God. 3 अलग व्यक्ति एक ही परमेश्वर में, Father, Son and Holy Ghost. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। It is not that he is playing, Father is playing Son's role and Son is playing Holy Spirit role. It is totally different. और ये ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र का रोल करता है, पुत्र पवित्र आत्मा का रोल करता है, ऐसा नहीं, पर ये बिल्कुल अलग है। Father, Son, Holy Ghost is God. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। All 3 are one God. तीनों एक ही परमेश्वर है। तीनों, all 3 are one God. ये सब एक परमेश्वर है। That means we can't differentiate from one another. इसका मतलब है हम एक को दूसरे के साथ और तीसरे के साथ ऐसा अलग कर नहीं सकते। He is awesome वो God. अद्भुत परमेश्वर है। Those who know their God, वो जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, only Jesus can show and help us to know God. केवल यीशु मसीह है जो हमें परमेश्वर को जानने के लिए मदद कर करता है। So Father has blessed Jesus, तो परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह को आशीष किया, sealed him, उस पर मुहर लगाई that Son shall give us a food. कि पुत्र जो है हमें भोजन दे, That food is to know him. और वो भोजन ये है कि हम उसे जान सकें। And Daniel said 11:32, और दानियल ने 11:32 में कहा, but they that know their God वो जो अपने परमेश्वर को जानते हैं shall be strong वो सामर्थशाली होंगे and do exploits. और वो बहुत बड़े बड़े काम This is a करेंगे। time to do mighty exploits. ये समय है बड़े बड़े काम करने का। Father loved the Son. पिता ने पुत्र से प्रेम किया। Jesus said, I am going to send you another helper. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार को भेजता हूँ। दूसरे मददगार को भेजता हूँ। We know that 3 person in one God. हम जानते हैं कि 3 व्यक्ति एक परमेश्वर के Many अंदर। times a small kid can't understand father and mother. बहुतों बार छोटा बच्चा मम्मी और पापा को समझ नहीं But when पाता, he spends time with their parents, पर जब वो अपने माता पिता के साथ समय बिताता in the है duration of time he learns to understand them. और उस समय के दौरान वो अपने माता पिता को समझता In the है। same way, when we give ourselves to God, उसी रीति से जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे though देते we may हैं, not understand Him, जबकि हम उसे समझ नहीं सकते, still He will going to reveal Himself to us. तभी भी वो अपने आप को हमें दिखाएगा, दर्शाएगा। God परमेश्वर is God, परमेश्वर है, and He is going to bless us in a unique way. वो हमें अद्भुत रीति से आशीष देता So है। in this time when we draw near to Him, और ये समय में जब हम उसके नजदीक आते let's हैं, remove all obstacles. तो आइए हम सारी अड़खड़ों को निकाल We दें। are not following a God who is changing हम वो rules, models, modes. हमारा परमेश्वर वो हम है, उस खुदा के पीछे नहीं जा रहे हैं, ईश्वर के पीछे नहीं जा रहे हैं जो अपने मोड को बदलते रहता है. We are serving the unique God. हम जो है अद्भुत परमेश्वर के पीछे जा रहे हैं। In the beginning was the Word, and the Word was with God, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के and साथ the था Word was God. और वचन परमेश्वर था। And we need to come near to Jesus. और हमें यीशु के नजदीक आना है। God appeared in flesh. परमेश्वर देहधारी हुआ। Son, when we come closer to Him, जब हम उसके नजदीक जाते हैं, in such situation where right now we are, और इस परिस्थितियों में जिसमें अब हम हैं, Daniel 11
32 says, और दानियल 11:32 कहता है, and such as do the wickedly against the covenant shall he corrupt by flatteries. और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। Let no one remove you from your faith. कोई भी आपको आपके विश्वास से अलग न कर पाए। We need to work. हमें जरूरी है कि हम काम We करें, need परिश्रम to करें। labor. हमें परिश्रम करना है। Remove all obstacles. सभी बाधाओं को निकाल दो। Come to Him. उसके पास आइए, Draw near to Him. उसके नजदीक So we आइए, can understand Father, Son and the Holy Spirit. और तभी हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को समझ सकते Father, हैं। one who sealed Him for that He may bless us. पिता जिसने शाप लगाई उस पर जो हमें आश्रित कर सके। So we can understand the work of the Holy Ghost which is right now working in us. तो हम पवित्र आत्मा के काम को देख सकते हैं जो हम में अभी काम कर रहा है। We can draw near to Him. हम उसके नजदीक जा And we सकते can हैं be blessed and be a blessing for many people. और हम आशीष दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। Jesus is from the beginning. यीशु मसीह शुरुआत से आदि से That's था। why He said in John 8:58, इसीलिए उसने यूहन्ना 8 और 58 में कहा, before Abraham was I am. अब्राहम से पहले मैं था। He is all powerful वो God. सर्वसामर्थ्यशाली खुदा In है। John 5:18, He made Himself equal with God. और यूहन्ना 5:18 में उसने अपने आप को परमेश्वर के जैसा बताया। In Mark 14:61, He declared Himself Messiah God. और मरकुस 14:61 में उसने अपने आप को मसीहा परमेश्वर कहा। In John 9:38, He accepted worship. और यूहन्ना 9 उसका 38 में 38 में उसने आराधना को ग्रहण किया। In Matthew 24:35, He showed Himself equal with God. और मत्ती उसका 24-35 में उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ एक बताया। In John 14:13-14, He accepted prayers. और यूहन्ना 13 से 14 में हम देख सकते हैं कि उसने विनतियों को कबूल किया। According to Isaiah, Jesus claimed Himself to be God by using the parables. और यशायाह की किताब में दर्शाया गया है कि यीशु मसीह ने खुद दृष्टांतों में बताकर अपने आप को खुदा कहा। Like God will teach in parables. जैसे परमेश्वर दृष्टांतों में सिखाता है, And Jesus did it. यीशु ने वैसा किया। We need to come to Him. हमें उसके पास आना Now है। we are being filled with another helper. अब हम दूसरे मददगार से भरे हुए And He हैं is God, the Holy Spirit. और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा है। For Him we have an ample of references. और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे When He references came है upon the बाइबल में। disciples spoke in tongues. जब वो अपने शिष्यों पर आया तब वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। Time is not permitting me to share a lot. और मुझे समय इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे बहुत कुछ बांटूं। But Jesus can bring us to Him and do a miracle in our life. पर यीशु मसीह हमें उसके पास लेकर आएगा और बहुत सारे चमत्कार करेगा। In this situation, we need to trust God more than all that we see and all that we hear. और इन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है और इन परिस्थितियों में जो हम देखते हैं उन पर नहीं। We, in the beginning, Genesis 1:1, it is written, क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, in the beginning, God शुरुआत में आदि में परमेश्वर created heavens and earth. स्वर्ग परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा। Oh, the same God is with you. वही परमेश्वर आपके साथ है। He who created heavens and the earth can create a new life and a new beginning in you. वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा आपके अंदर नए जीवन को उत्पन्न कर Don't सकता be है। afraid of this pandemic or all this going all around you. इस महामारी से आप डरिए मत, नहीं जो परिस्थितियां आपके चारों ओर आप देख रहे हैं उनसे मत But डरिए, draw near to Him. पर उसके नजदीक Know आइए, Him. उसे जानिए। As Adam knew his wife. जैसे आदम अपने
पत्नी को जानता था। Knowing is not just collecting some knowledge. जानना यानी कुछ ज्ञान को प्राप्त करना नहीं। Knowing is something personal relationship. ज्ञान मतलब बहुत गहरा रिलेशन, रिश्ता. Come to him. उसके पास Have आओ। relationship with him. उसके साथ संबंध You might have जोड़िए। heard about Jesus. आपने हो सकता है कि यीशु के बारे में सुना But होगा, now is the time to experience Father, Son and the Holy Ghost in a unique way. पर ये समय है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को एक खास तरीके से हम देखें, अनुभव ले। अनुभव We need to उसका। come to him. उसके पास आए। You can say, He healed me. आप कह सकते You हैं can कि say, वो मुझे He set me free. चमत्कार करता है, मुझे छुटकारा दिया Only है। coming to Him can set you free. केवल उसके पास आने से आपको छुटकारा मिलता Jesus है। is the way, the truth and the life. यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। Oh, come to this relationship. ओ इस रिश्ते में आप जुड़ जाइए Labor for this. और इसके लिए परिश्रम It may कीजिए। cost you anything. उसके लिए आपको कुछ भी Many कीमत क्यों न hindrances चुना- may come, many blockages may come. बहुत सारी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी बाधाएं क्यों ना Many आए, people may say, no, you can't. बहुत सारे लोग कहे क्यों न कहे कि आप नहीं कर Many सकते। doubts may come into your brains. बहुत सारे शक आपके दिमाग में क्यों But ना आए, break all that. पर सबको तोड़ डालिए। Labor. परिश्रम Labor कीजिए। for the food which will last for everlasting उस life. भोजन के लिए परिश्रम कीजिए जो अनंत काल तक Don't टिका labor रहता for the है। food which will perish. उसके लिए परिश्रम मत कीजिए जो नाशवंत है। Come labor. ओ आइए परिश्रम कीजिए। For उसके that you लिए। may need to sweat. उसके लिए आपको पसीना क्यों For न that you बहाना may पड़े, need to bear a loss. और उसके लिए आपको नुकसान क्यों न झेलना But for पड़े, that you may toil, or you may put your strength. और उसके लिए आप मेहनत कीजिए और उसके लिए अपने आप को दे दीजिए। Should we close our eyes? क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। If you want this experience अगर आपको ये अनुभव चाहिए, to live powerfully, सामर्थशाली रूप से जीने के लिए, come to Him. उसके पास आइए। Just close your eyes and look at Him. ओ अपने केवल आंखों को बंद कीजिए और उसकी ओर देखिए। See that how great and powerful God is. और देखिए कि कितना सामर्थशाली और महान परमेश्वर Utter है। your prayers from the bottom of your heart. और अपने हृदय की गहराइयों से विनतियों को उसके Believe पास in your भेजिए। mind that God is, और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर है। and experience the miracle right now. और अभी इसी क्षण चमत्कार का अनुभव लीजिए। The one who did these many miracles, He can do it for you. ओ जिसने इतने सारे चमत्कार किए वो आपके लिए तैयार है करने के लिए। Just experience Him उसका अनुभव लीजिए and ask Him, और उससे मांगे, Lord, I want to know You. प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। I want to walk with You. ओ मैं तेरे साथ चलना I want चाहता to- हूँ। I desire a personal relationship with You. ओ तेरे साथ मैं गहरा रिश्ता When जोड़ना you चाहता हूँ। come closer to Him. ओ उसके पास आइए, उसके नजदीक आइए। When you come, जब आप आते हैं you will have a relationship with Him. तब उसके साथ आप रिश्ते को जोड़ते His हैं relationship will bring a revelation in you. और उसके साथ रिश्ता जोड़ने से आपके अंदर प्रकटीकरण को वो लेकर आएगा। Father, पिता, as you blessed your Son Jesus, जैसे तूने अपने पुत्र यीशु को आश्रित किया and in Him you have blessed many, those who believe in You. और उसके अंदर तूने हर एक को आश्रित किया जिसने उस पर भरोसा किया। Today I pray, आज मैं प्रार्थना करता all हूँ those who come to You by faith, वो सभी जो तेरे पास विश्वास के साथ आते let हैं, all their prayers be answered. उनकी सारी प्रार्थनाएं, विनतियाँ Let the love be पूरी हो जाए। stirred up inside them, और उनके अंदर जो प्रेम है वो हिल जाए and they may embrace You. और वो तुझे गले लगाए। Father, और चिपक which जाए। word can't, my words can't reveal. जो मेरे शब्द प्रकट नहीं कर Holy सकते। Spirit, pour Your blessing and grace. पवित्र आत्मा तू अपने आशीष को उंडेल And lead them into relationship with Father. और पिता के साथ कैसे संबंध जोड़ना है उनकी अगुवाई कर।
We thank you and praise you. हम धन्यवाद करते हैं और तेरी और विनती करते हैं, And we pray for the revelation of knowledge and wisdom. और हम प्रार्थना करते हैं प्रकटीकरण का ज्ञान। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Father. धन्यवाद करते पिताजी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Let God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। You may experience all your needs met by the power of God. और आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर के सामर्थ के साथ पूरी हो That you जाए, may also come up with the great testimonies. कि आप भी बहुत बड़े गवाहियों के साथ आए। God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।